चलो बताओ व्हाट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर किया है? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, अदर नेम pneumococcus, and there are two strains of this bacteria. Which are these? What is S strain? Smooth means it produces mucus or polysaccharide coat, because of that it is pathogenic or virulent. What is second type? R strain. R means because no mucus coat. Yes, it is non. Then what was the first experiment done by Griffith? First step, injected कौन सा? S strain. Then mice died. Second, then next heat killed S strain. Then yes, and last heat killed S strain plus living rice R strain. Then because why? Something transferred from S strain to, so that R strain became S strain, and because of that mice died. Yes. Okay. So next experiment is this one. Second point, write this. Biochemical characterization of transforming principle. Chalo, okay. Biochemical characterization of transforming, and right there. The experiment was done by Avery, MacLeod and McCarthy. पूरा नाम देखो क्या है? Oswald, Avery वगैरह. The experiment was performed by Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy. And initially it was thought that genetic material should be protein. Okay, right. और ग्रिफिथ का ही एक्सपेरिमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है, देखो कैसे. क्या लिखा इधर अभी? और इसमें से उन्होंने सेपरेट किए क्या क्या सेपरेट किया? RNA एंड DNA. ओके, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड, बाद में ले टेस्ट ट्यूब्स और इनमें रखे लिविंग R स्ट्रेन सब में. ओके, और इसमें से एक एक पार्ट यहाँ डाला है. फॉर एग्जाम्पल इसमें डाले प्रोटीन्स. बताओ क्या होगा? And then after some time these living R strain was injected into mice. कौन से mice की डेथ होगी? थर्ड. तो इसे क्या प्रूव हो गया? DNA is transforming principle. That was proved by these three scientists. अरे को समझा क्या? लिखो. कैसे लिखेंगे? हाँ लिखो. They separated बंद करना है क्या? चलो. They separated proteins, RNA and DNA, from heat killed S strain. Heat killed S strain. And separately introduced into test tubes containing living R strain. समझे? संडेस आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट? उसके बाद क्या लिख रहा हूँ? हाँ, आफ्टर सम टाइम living R strain injected into separate mice. Yes, after some time living R strain injected into different mice.
तीनों के अलग अलग। इनटू डिफरेंट माइस। आगे क्या लिखेंगे इसके बाद? हाँ, विच माइस विल डाई? थर्ड वन मीन्स हैविंग डीएनए, राइट। द माइस विल डाई where DNA was introduced. So it proves that, क्या प्रूव होता है? DNA is transforming principle and not the protein. So it proves that DNA is transforming principle. समझा? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अरे कोई समझा क्या डाउट? और एक एक्सपेरिमेंट इसमें और एक है। All these three injected into again the test tube having R strain. लेकिन इसके साथ उन्होंने डाले एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीएज एंड आरएनएज। देखो क्या क्या उन्होंने ऐसे ये तीनों कहाँ डाले? अभी तीनों कहाँ डाले? एक ही टेस्ट ट्यूब में। उसके अंदर कौन है? लिविंग आर स्ट्रेन है, लेकिन उसके साथ कौन से एंजाइम डाले? और आरएनएज। क्या हुआ होगा? उससे पहले बताओ, माइस विल डाई और विल नॉट डाई? विल डाई। व्हाई? डीएनए है। प्रोटीज ने क्या किया है? प्रोटीन्स न्यूट्रलाइज किए। आरएनएज ने आरएनए, लेकिन कौन है? डीएनए है। सो इससे क्या प्रूव होता है? अगेन डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड नॉट प्रोटीन। और अगेन उन्होंने यहाँ इसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में और ये भी ऐड किया, डीएनए इज व्हाट विल हैपन? माइस विल नॉट डाई। तो क्या प्रूव होता है? अगेन डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये भी करके देखा, राइट। अरे को समझेगा एक्सपेरिमेंट? लिखो। हाँ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखो। प्रोटीन्स आरएनए एंड डीएनए proteins RNA and DNA from heat killed S strain introduced into the test tube having living R strain. R strain. तो एडिशनली और क्या ऐड किया है? पहले दो देखते हैं। हाँ, एडिशनली एंजाइम प्रोटीज एंड आरएनएज वेर एडेड। Additionally, enzymes, protease and RNAs were added then mice क्या हुआ? Will die, yes. The mice died. उसके बाद और क्या लिखेंगे? When DNAs were added, when DNAs was added, what happened? Did not. Yes, mice did not die. It proves, क्या प्रूव करता है? DNA is transforming principle. So it proves DNA is transforming principle. चलो थोड़ा समझे, लेकिन देखो लास्ट लाइन क्या है? अरे ये देखो, not all biologists were convinced. तो unequivocal मतलब perfect, not undoubted full proof was given by Hershey and Chase. लिखो लिखो आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, द जेनेटिक मटेरियल इज DNA. अनइक्विवोकल मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन या विदाउट एनी डाउट, परफेक्ट ऐसे।
देखो आगे नेक्स्ट, द अनइक्विवोकल प्रूफ, एक बार ये आया था अनइक्विवोकल वाला, ये नीट में आया था क्वेश्चन, अनइक्विवोकल प्रूफ। किसने दिया था ये? हाँ, द DNA is genetic material was given by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. Hershey and Chase, चार है देखा होगा। चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये आया था बोर्ड पे, 3 मार्क के लिए डायग्राम आते हैं। ड्रॉ दिस डायग्राम। चलो ठीक है, अब यहाँ थे, कल ही था, मतलब उन्होंने बताया सब प्रोसीजर वगैरह। हाँ पॉसिबिलिटी ये तो है, बाकी वो बहुत है। वॉल्व्स आपको मालूम है ना, वॉल्व्स रिपेयर करते हैं, उसमें भी हम बायोलॉजिकल वॉल बिठा सकते हैं या परमानेंट मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब वो ख़राब नहीं होंगे कभी, लेकिन बायोलॉजिकल वॉल रहते हैं वो अपने मटेरियल से रहते हैं, बॉडी रिलेटेड, वो ख़राब हो सकते हैं कई दिनों के बाद, ऐसे कॉस्ट लेकिन बढ़ता है। सब 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 नॉर्मल हार्ड जैसे काम करता है, लेकिन ओनली 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक अभी लाइफ स्पैन, और तो उससे भी बढ़ सकता है। उन्होंने सेमिनार में हमें बताया था कि 8 to 10 ईयर्स, लेकिन गूगल बता रहे 2 ईयर्स, देखना पड़ेगा 2 ईयर्स और मोर देन दैट, लेकिन अभी कुछ तो नया आया होगा कि उतना भी बढ़ सकता है। हम लाइफ टाइम के लिए आर्टिफिशियल हार्ट यूज कर सकते हैं? चलेगा ना उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट, अभी तो इतना ज़्यादा हेवी नहीं, हेवी उतना डिमांड नहीं होगा। हाँ होगा अभी, वो तो नया नया है, वो सब ये जर्मन टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐसे बना। आर्टिफिशियल हार्ट को 2 साल के बाद निकाला और फिर दूसरा को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया, फिर से नहीं वो वही उसका लगा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है, ट्रांसप्लांट करो। पर अगर नहीं मिला तब तक मोस्टली वेट ही करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए वेट करते हैं। एथलेटिक नहीं करेगा, एथलेटिक उतना कैसे। देखो राइट साइड की डायग्राम देखो, सबसे पहले बताओ क्या है, व्हाट इज दिस, ये कौन है? नहीं ये पहले लिखो बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया, चलिए चलिए चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेबल करो, ये बैक्टीरिया नहीं लिखा ना किधर, बैक्टीरिया है, ये कौन है, बैक्टीरिया, और ये कौन है, बैक्टीरियोफेज है। और इसको लेबल करो पहले, दिस इज बैक्टीरिया, तो लाइट ग्रीन बनाया वो बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियोफेज कैसे करता है, इट रिलीजेस इट्स डीएनए, ये देखो अंदर ये सेंटर में डीएनए, ये अपना डीएनए कहाँ छोड़ता है, इनसाइड द बैक्टीरिया, देन दैट डीएनए बाइंड्स विथ बैक्टीरियल डीएनए, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। अरे कोई समझ रहा है क्या, वायरल डीएनए कहाँ आता है, इनसाइड द बैक्टीरिया एंड बाइंड्स विथ बैक्टीरियल डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। अब बताओ डीएनए में फॉस्फोरस होता है कि सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, ओके। और बाहर एक क्या है, व्हाट इज दिस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोड, और एक नाम है कैप्सिड, नाम सुना है कैप्सिड, तो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में क्या होता है। अब देखो क्या उन्होंने से, उन्होंने पर्पसफुली यहाँ जो डीएनए है वो लिया है रेडियो एक्टिव, उसमें कौन है P32 विच इज रेडियो एक्टिव, ये मालूम है क्या आपको केमिस्ट्री, P32 इज रेडियो एक्टिव। तो पर्पसफुली जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए कौन सा लिया है, P32, एंड देन अलाउड टू इंट्रोड्यूस इनसाइड दिस बैक्टीरिया, ये अपना डीएनए अंदर छोड़ेगा, राइट। अब बताओ अंदर जो पार्ट है वो रेडियो एक्टिव रहेगा कि बाहर का पार्ट रेडियो एक्टिव है, अंदर का पार्ट और बाहर का नॉन रेडियो एक्टिव। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे क्या प्रूव होता है, डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, नहीं समझा अभी तक, एक मिनट, ओके। यहाँ जो डीएनए लिया है कौन सा है, रेडियो एक्टिव है, जिसके अंदर फॉस्फोरस है। अब इसको अलाउ किया है कहाँ, इस डीएनए को अंदर छोड़ा है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और अंदर का मटेरियल अब क्या रहेगा, और बाहर का मटेरियल यानी बाहर जो प्रोटीन है वो क्या रहेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव। तो क्या प्रूव होता है, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ अभी जो आउटर
कैप्सिड है उसमें जो सल्फर है दैट इज रेडियो एक्टिव S35, ये देखो ये कौन है, रेडियो एक्टिव। और अंदर जो DNA नॉन रेडियो एक्टिव, अगेन इट इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस, फिर ये अंदर आ गया, ये देखो ब्लैक, यानी DNA अंदर आया। अब बताओ बाहर का मटेरियल क्या रहेगा और अंदर का क्या रहेगा, बाहर का क्या है और अंदर क्या प्रोत है इसे, DNA is and not the protein that was proved by Hershey and Chase। खत्म। सर बट ऐसे कैसे पॉसिबल है कि डीएनए रेडियो एक्टिव है और उसकी बॉडी इज नॉन रेडियो एक्टिव? नहीं अंदर के लिए है ना, फॉस्फोरस लिए अंदर। फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए नहीं फॉस्फोरस DNA के RNA में, अपना प्रोटीन में, फॉस्फोरस DNA में। पर्पसफुली कौन सा लिया है फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव, तो कहाँ रहेगा, DNA के अंदर रहेगा। बाहर का मटेरियल क्या है अभी, नॉन रेडियो एक्टिव। इस केस में क्या लिया है, सल्फर क्या लिया है 35 विच इज रेडियो एक्टिव, जो कहाँ होता है प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन क्या हो गया अभी, और अंदर का DNA, क्योंकि DNA के अंदर क्या नहीं है, सल्फर नहीं है। अरे को समझ रहे कि नहीं, वापस मुझे आज के लिए क्वेश्चन। तो इसे क्या प्रूव हो गया, DNA इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में कौन जा रहा है, DNA जाता है। चलो पढ़ लो यहाँ भी, वापस पता चलेगा, पढ़ लो एक बार फिर वापस बताता हूँ। अरे बहुत सिंपल एक्सप्रूव है, इसमें क्या है, रीड दिस केयरफुली। मुझे लगता है टेक्स्ट बुक निकालो, पेन पेंसिल निकालो और देखो अंडरलाइन वगैरह करते चलो, तो पता चलेगा। हाँ सीधा फर्स्ट लाइन, चलो एक्सप्लेन करते हैं। बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर्स इनटू, ये तो सिंपल। नेक्स्ट आगे पढ़ो। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरल। इसका मतलब बताओ क्या करता है, ये लाइन का सेकेंड, अरे आपको मालूम है क्या करता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज करता क्या है, उसका DNA अंदर चला जाता है और कहाँ अटैच होता है, बैक्टीरिया के DNA को, और फिर क्या होता है, उसके मल्टीपल कॉपीज बनते हैं। ये मालूम है कि नहीं, पहले एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है शायद। सपोज एक बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर ये कौन है, व्हाट इज दिस, DNA। देन सपोज ये है बैक्टीरियल DNA, then what happens, it enters into this one or attaches here, ताकि क्या होगा आगे, it produces multiple copies, बताओ क्या हुआ है, अब तो बताओ। ये कौन है, व्हाट इज दिस, enters into, attaches with, so that this bacterial DNA produces many copies of viral DNA। ये है वायरल DNA। फिर इसके बाद क्या होगा, इनके ऊपर वापस क्या आता है, बहुत सारे कोट्स आते हैं, और क्या बन गया आगे, बहुत सारे कौन बने, बैक्टीरियोफेज बने, और यही सब क्या होते हैं, बर्स्ट करके बाहर निकलते हैं। फिर ये बैक्टीरियोफेज कहाँ जाएंगे, अरे क्या हो रहा है, अरे क्या है इतना, ये कहाँ जाएंगे, दूसरे बैक्टीरिया में, उनको इन्फेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई होंगे। अरे को समझा, तो यही तो एक्सपेरिमेंट है। अभी क्या हुआ बताओ, इन्होंने पर्पसफुली क्या लिया, DNA रेडियो एक्टिव, फिर उसका DNA कहाँ चला गया, तो अंदर बाहर का मटेरियल क्या होगा, या अंदर आने के बाद बाहर खाली कौन बचा है, कैप्सिड बचा है ना, और कैप्सिड क्या रहेगा, नॉन रेडियो एक्टिव, और DNA जो अंदर, तो अंदर का पार्ट अभी क्या रहेगा, और बाहर का पार्ट क्या प्रूव हो गया वैसे, DNA इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कितना सिंपल, ओके हाँ ओके ओके सर, नाउ रीड दिस केयरफुली। दे ग्रू सम वायरसेस, पढ़ लो आगे वहाँ से।
कई वायरसेस में कहाँ ग्रो किया है? दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस तो कहाँ जाएगा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल? डी, मतलब कहाँ? बैक्टीरिया के अंदर Viruses grow, they grew viruses on medium that contain और some others containing. तो अब बताओ इनमें कहाँ कहाँ रहेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल? नहीं नहीं नहीं, इस वायरस में कहाँ रहेगा? डीएनए के अंदर फॉस्फोरस रहेगा। अरे नहीं समझेगा, एक मिनट। डिफरेंट वायरसेस लिए, एक को ग्रो किया है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, एक को ग्रो किया है रेडियो एक्टिव सल्फर में। तो अब बताओ जहाँ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया है उसके कौन से पार्ट में रहेगा रेडियो एक्टिव मटेरियल? डीएनए के अंदर, और इधर आउटर यानी कैप्सिड के अंदर। आगे नेक्स्ट, आगे वाला लाइन सेम है, पढ़ लो जरा अच्छे से। इसका मतलब क्या है? वायरस इज ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन, ये देखो सेम, बट नॉट रेडियोएक्टिव बिकॉज डीएनए कंटेन्स। आगे का लाइन सेम है। अब रेडियोएक्टिव सल्फर है तो क्या रहेगा? प्रोटीन, बट डीएनए इज नॉट रेडियोएक्टिव। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। बैक्टीरिया कौन सा है? देखो उधर, ई कोलाई बैक्टीरिया है, लिखना है तो लिखो उधर। बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। पढ़ो लाइन। रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेजेस वेर अलाउड टू अटैच किसको? देन एज ए इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट वेयर रिमूव्ड फ्रॉम एजिटेटिंग। इसका मतलब क्या रहेगा? एक बार डीएनए अंदर जाने के बाद बाहर का मटेरियल सेपरेट किया है, बाहर मटेरियल क्या बचा अभी? कैप्सिड। दस वायरस पार्टिकल्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय, ओके, ये तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया है। हाँ, अब इसका लाइन, इसका मीनिंग बताओ। Bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that, इसका मीनिंग बताओ क्या रहेगा ये लाइन का? हाँ, डीएनए एंटर्ड इनसाइड, तो बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल क्या हो गया और बाहर का मटेरियल? इससे क्या प्रूव होता है? डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन वेर नॉट, इसका मीनिंग बताओ। नहीं, इसका मीनिंग क्या रहेगा? हाँ, जिनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन था अब उसका डीएनए क्या रहेगा? नॉन रेडियोएक्टिव। तो बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल क्या रहेगा और बाहर का मटेरियल? तो इससे क्या प्रूव होता है? अगेन, और नॉट द प्रोटीन। नेक्स्ट, सेम तो डायग्राम में है। हाँ, ये तो अलग है, हो गया खत्म। आस्क एनी क्वेश्चन अप टू यार, कुछ नहीं समझा तो पूछो, तो वापस बताता हूँ। समझा कुछ क्या? नहीं, इसको समझा ना अभी तक? अरे इतना समझा, अरे बाप क्या कितना इजी है। एक मिनट, कई लोगों को समझ नहीं रहा है। एक सेकंड। सबसे पहले जो रेड दिखा है वो क्या है? तो डीएनए में फॉस्फोरस होता है कि सल्फर होता है? तो कौन सा फॉस्फोरस लिया है? रेडियोएक्टिव P32। इतना समझ में आया? तो बाहर का जो ब्लैक कलर का प्रोटीन है ये कौन है? ब्लैक कलर बाहर है सर। रेड छोड़ के जो पार्ट है वो क्या है? मतलब क्या है वो? कौन सा पार्ट है? किससे बना है? प्रोटीन है। अभी क्या है वो? रेडियोएक्टिव है कि नॉन रेडियोएक्टिव? क्यों? नहीं, ये जो पार्ट है ना, रेड वाला जो पार्ट है, ये डायग्राम देखो एक साइड की, रेड वाला जो पार्ट क्या है? रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर कौन है? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस है, और डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है। तो बाहर का जो कोट है वो कौन है? प्रोटीन कोट, कैप्सिड बोलते हैं उसको। वो क्या है? नॉन रेडियोएक्टिव, क्योंकि उसके अंदर कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं है। इतना समझा? अब डीएनए कहाँ जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज नहीं, बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो अंदर कौन आ गया? रेडियोएक्टिव मटेरियल आ गया कि नॉन रेडियोएक्टिव? तो अंदर का पार्ट क्या होगा? और बाहर ये जो बचा है कैप्सिड वो क्या रहेगा? तो इससे क्या प्रूव होता है? डीएनए जा रहा है ना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, तो डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यही प्रूव हो गया। अब ये डायग्राम देखो,
अब इसमें सेंटर का जो ब्लैक पार्ट है वो क्या है, यानी डीएनए है वो, और बाहर जो पार्ट है कैप्सिड वो क्या है, क्यों, क्या लिया उसके अंदर, सल्फर जो प्रोटीन में होता है। तो सल्फर S35 कौन है, रेडियो एक्टिव है। अगेन वापस ये डीएनए अंदर गया तो कौन सा पार्ट अंदर गया, रेडियो एक्टिव की नॉन रेडियो एक्टिव। एग्जाम्पल में अंदर कौन, डीएनए जाता है ना, अब डीएनए कौन है, तो अंदर का पार्ट क्या रहेगा और बाहर का पार्ट क्या प्रूव होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए नॉट द, हो गया ना एक्सप्लेन। और Sir, what is centrifugation? सेंट्रीफ्यूगेशन इज सेपरेशन। अब सेंट्रीफ्यूज मानो ना, अगर हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड रखते हैं तो क्या होता है बताओ, सेपरेट मतलब नीचे क्या आते हैं, सेल्स आते हैं, ऊपर क्या रहता है, हाँ कल जीत, 1 रन से जीत गए, ओके हाँ ओके। बाहर क्या, प्लाज्मा रहता है, ऊपर प्लाज्मा रहता है। इसको आप लोग एक जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देखा है, ऐसे टेस्ट ट्यूब लगाते हैं और घुमाते हैं तो उससे फास्ट होता है, मतलब क्या होगा, नीचे सेल्स फास्ट आते हैं, प्लाज्मा सेपरेट होता है, वही है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बाहर का जो सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। प्रतीक हाँ म्यूटेशन थोड़ी हम देख रहे हैं, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग म्यूटेशन। हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, इधर अंदर कौन जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। म्यूटेशन होते हैं उससे हमें क्या लेना देना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अंदर ही जा रहा है ना। हमें प्रूव क्या करना है, कौन अंदर जा रहा है, किससे म्यूटेशन होता है, दैट इज डिफरेंट। वी आर नॉट स्टडिंग दिस थिंग यार। हम क्या प्रूव कर रहे हैं, डीएनए जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे में, वही प्रूव करें। रेडियो एक्टिव वगैरह अलग चीज है। वो जो आज के क्वेश्चन वो वाले में द आउटर वॉल वाइट नॉन रेडियो, किसमें, नहीं आउटर वॉल रेडियो एक्टिव है, क्यों है क्या, अंदर अंदर कौन जाता है, डीएनए जाता है कि प्रोटीन जाता है, अंदर अंदर बैक्टीरिया के अंदर कौन जाता है, डीएनए जाता है, तो बाहर कौन बचा, प्रोटीन, और ऑलरेडी प्रोटीन कौन सा था, तो बाहर का मटेरियल क्या रहेगा, नहीं समझा बेटा, 1 सेकंड। ये ब्लैक पार्ट अंदर जाता है ना, ये ब्लैक पार्ट कौन है, डीएनए। डीएनए अभी कौन है इधर इस एग्जांपल में, नॉन रेडियोएक्टिव। बाहर का प्रोटीन पार्ट क्या है, अंदर कौन जा रहा है, डीएनए जो क्या है, तो अंदर का पार्ट क्या रहेगा और बाहर का पार्ट, दैट इज प्रूव्ड। तो क्या प्रूव हो गया, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, प्रोटीन इज नॉट। मतलब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं जाता, कौन जाता है, डीएनए जाता है, यही प्रूव करना है। आज के लिए क्वेश्चन पूछो तभी आगे जाएंगे, नहीं चलो फिर नेक्स्ट। अब ये तो आगे ये लिख दो, क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस इज अगेन सिंपल। अपने डीएनए और आरएनए डिस्टिंग्विश किया है ना, देखो पहले कभी किया कि नहीं, नहीं क्या, कुछ एक पॉइंट रहेगा सर, तो देखिए पहले ये करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। चलो कितने पॉइंट लिखे, अच्छा बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट एवरीवन, शुगर फुल फॉर्म है, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट। No contains deoxyribose sugar. हाँ इसमें शुगर कौन सी है, बोलो डीऑक्सीराइबोज, और उधर लिखो पहले पॉइंट, नहीं लिखा है तो लिखो, नहीं लिखा है तो लिखो, सबने लिखा, सबने लिखा है शुगर, शुगर लिखा, ओके कोई बात नहीं। चलो सेकंड बताओ, हाँ इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस थायमिन इज प्रेजेंट, थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल, ऐसे लिखो। Double strand. नहीं एक मिनट, ठीक है, नहीं ये हुआ थायमिन का लिखा सबने, चलो कोई बात, नेक्स्ट बताओ, बराबर डबल स्टैंडर्ड, और ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी लिखो। किसको सा, नहीं वो शुगर में आ गया, हाँ फॉर्मूला उसमें है ना शुगर में, हाँ वही तो इसमें आ गया ना, थायमिन में, थायमिन में आ गया। और बताओ, हाँ बोलो बोलो बराबर, हाँ तो इसमें के लिए कैसा लिख सकते हैं, लिखो राइट ऑफ, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
DNA is genetic material in all organisms except some viruses. कुछ समझा क्या मतलब? सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अरे डीएनए सब में क्या है? जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ लिखो, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, RNA is genetic material in some viruses. कौन से viruses? RNA viruses. Example TMV, tobacco mosaic virus. Even HIV भी ये होता है. बताओ और कौन सा वर्ड रहेगा? इधर बाद में पढ़ेंगे. ओके, और हाँ यस, तो लिखो राइट डाउन. डीएनए इज मेनली ऑफ वन टाइप. डीएनए इज ओनली ऑफ वन टाइप. लेकिन आरएनए के टाइप्स क्या होते हैं बताओ? आरएनए के दो टाइप लिखो. एक होता है जेनेटिक, जो अभी पढ़ा हमने, और दूसरा नॉन जेनेटिक. और नॉन जेनेटिक में 3. लिखो ऐसे. मेनली डीएनए इज ऑफ ओनली वन टाइप, लेकिन आरएनए में कैसे है? जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक. तो जेनेटिक किस में रहेगा? वायरसेस. वही अभी टीएमवी लिखा ना. और ये नॉन जेनेटिक अपने बॉडी में कौन है? उसके भी 3 टाइप. हाँ बराबर है. फुल फॉर्म इनका डायग्राम है ना आपके, इसके संडे लिए ना कुछ तो वही पढ़ना आ गया फुल फॉर्म. डायग्राम नहीं हुआ? हुआ है ना सर, मैंने किसी के नोटबुक में देखा था. हुआ है ना वो टीआरएनए का डायग्राम, फ्लावर लिप मेडल. हाँ वही ना. हाँ हुआ है, मैंने डायग्राम देखे थे ना. चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, और क्या रहेगा? ठीक. डीएनए में प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो क्या रहेगा? और क्यों? इधर क्या रहेगा आरएनए में? प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो सोचो. अरे 1:1 कैसे रहेगा? 1:1 सिंगल स्टैंडर्ड है ना. रेयरली हो सकता है, रेयरली भी हो सकता है ना. नहीं समझा? आरएनए कैसे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड अगर है तो प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्वल थोड़ी होंगे, अनइक्वल. रेयरली हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या रहेंगे? लिखो, प्यूरिन पायरिमिडिन प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वालिटी प्रेजेंट. प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वालिटी इज प्रेजेंट. और उधर क्या लिखेंगे? मे नहीं ऐसे नहीं, मे और मे नॉट प्रेजेंट. प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वालिटी मे और मे नॉट प्रेजेंट. इसमें किसके चांसेस ज़्यादा है? मे के, मे नॉट के? मे नॉट के ज़्यादा है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. डीएनए में कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स?
अपने ह्यूमन देखेंगे तो, अरे बोलो 6 बिलियन पेयर्स, तो बहुत ज़्यादा है ना। आरएनए में कंपेरेटिवली कम रहता है। देखो डीएनए कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये थाउजेंड्स मतलब नॉट 1000। डीएनए कंटेन्स, हाँ 6th वो इक्वालिटी प्यूरिन पैरिमिडिन। इसमें लिखो अभी क्या, हाँ डीएनए कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यार थाउजेंड्स मतलब नॉट 1000 ना मेन ये से, और उधर फ्यू हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कब रहते हैं। आरएनए में फ्यू हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अपने सेल्स में डीएनए मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, लेकिन आरएनए बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस देखो समझ बराबर, मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और आरएनए इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कोई ना मेनली, इसलिए तो मेनली लिखा। क्या लिखा हमने पर्पसफुली, मेनली। अरे को समझा ना। और आरएनए कहाँ होता है, बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। चलो और कुछ रह गया, देखो सोचो। ठीक, और एक 2-3 पॉइंट के लिए जगह छोड़ के रखो, 1-2 पॉइंट के लिए, आगे का पढ़ने के बाद हम लिखेंगे। चलो आगे, हाँ पहले ये पार्ट पढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट इज, देखो क्या लिखा है इधर, पढ़ो अच्छे से। अ मोलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, लिख दो आगे, बैठो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विश। कंप्लीट हो गया। 1-2 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो खाली। क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के लिए कौन से क्राइटेरिया होनी चाहिए। राइट दिस 4 पॉइंट्स। पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन बोलो क्या है फर्स्ट क्राइटेरिया। वेरी सिंपल, एबिलिटी ऑफ रिप्लिकेशन। सेकेंड, केमिकल एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, देखो उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, स्लो चेंजेस, ताकि क्या हो सके। नेक्स्ट, इसका मीनिंग क्या रहेगा, इसमें मेंडेलियन कैरेक्टर्स मतलब क्या होना चाहिए, डोमिनेंस एंड, जरूरी है। ये सब कैरेक्टर्स किसके होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब इनको एक्सप्लेन करना है एक एक को। रीड दिस फर्स्ट केयरफुली और थोड़ा ट्राई करो, बताओ। बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव एबिलिटी टू, मतलब किसमें रिप्लिकेशन, साइलेंस रेवन, अरे किसमें रिप्लिकेशन पॉसिबल है, डीएनए आरएनए। व्हाई, बिकॉज देयर इज बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी। किसमें पॉसिबल नहीं होता है, प्रोटीन्स में नहीं होता। दैट्स व्हाई, ये देखो प्रोटीन्स कैनॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, मतलब प्रोटीन रिप्लिकेट नहीं होते। रिप्लिकेशन किसमें होता है, खाली लिखो आगे, बैठो। अब इनका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये है, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ, तो प्रोटीन क्या नहीं होते हैं, जेनेटिक मटेरियल नहीं होते। चलो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकंड बताओ क्या है, स्टेबिलिटी। ओके यस, नाउ रीड द फर्स्ट लाइन। अब स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सी देयर केयरफुली, क्या लिखा पढ़ो और अच्छे से बताओ इसका मीनिंग क्या रहेगा।
क्या मतलब इस लाइन का? जेनेटिक मटेरियल शुड नॉट चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ साइकिल की कौन सी भी स्टेज हो, एम्ब्रियो हो, व्हाटएवर. उसके बाद एज, चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ, इससे क्या नहीं होना चाहिए? चेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. देखो आगे सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है. जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल genetic material should be stable and should not change with different stages of life cycle. सेम वर्डिंग यूज करें इसका एनसीईआरटी का.